or keep it in the silence mode. I would also like to invite our guest. He has already arrived here. Sir, please take the seat. नियोजन से जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। आज देशबंधु के इस प्रांगण में उपस्थित एक ऐसे ही व्यक्तित्व से हम सभी को सरोकार होने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिन्होंने न सिर्फ एक एकेडमिशियन के रूप में बल्कि एक समाजसेवी और एक पूर्व राज्यसभा मेंबर के रूप में अपने आप को एक प्रतिष्ठित राजनेता की छवि के रूप में स्थापित किया है। मैं डॉक्टर गीता, कार्यक्रम की संचालिका, आप सभी का एक्सटेंशन लेक्चर कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। Today, Deshbandhu Extension Lecture Committee is pleased to welcome Honorable Speaker Professor Rakesh Sinha ji and our respected Principal Sir Professor Rajendra Kumar Pandey ji, respected Vice Principal Sir Professor Sunil Kaya sir, and IQAC Coordinator Dr. Aditya Saxena. I also welcome respected colleagues and dear students. Thank you all for having with us. Before we proceed further, I request all the dignitaries to join us for lighting the lamp and seek the blessing of Ma Saraswati. Saraswati
Vice Principal Sir to offer Amrvasta to our honorable speaker. I would like to call Dr. Anju Ma'am to felicitate our Vice Principal Sir by presenting a sapling. Oh, sorry, I would like Dr. Anju Ma'am to felicitate our Principal Sir by presenting a sapling. I also request Atul Sir to felicitate our Vice Principal Sir, Professor Sureen Kayal Sir. I would like to call Anil Sir to felicitate IQAC Coordinator Dr. Aditya Saxena Sir. I would like to invite Dr. Sandhya Ma'am to deliver a convener note. Principal Sir, respected Vice Principal Sir, IQAC Coordinator Sir, respected faculty members and dear students. It is with great pleasure that I extend my warmest welcome to you all on behalf of Extension Lecture Committee of the college to today's event. The aim of Extension Lecture Committee is to promote intellectual progress, motivate students, make students aware of societal needs and inculcate values by providing a platform for learning and expanding horizons, by encouraging young minds to pursue higher education and establishing connections with the community. Today, we are honored to have Professor Rakesh Sinha Sir as our guest and speaker. He is an eminent thinker and a magnanimous personality. I would like to thank you, sir, for taking out time from your busy schedule for today's event. We are looking forward to listen to your experiences in your talk, My Journey Across Academics, Social Work and Politics. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Sandhya Ma'am. Now I request Avnish Sir for introducing our today's speaker. नमस्कार सभी को नमस्कार। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमें जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, वैसे तो वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है तथा उनका परिचय कराना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। बिहार के बेगूसराय के में जन्मे प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी भारत के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, जो 2000 में भारतीय संसद में उस सदन राज्यसभा द्वारा हेतु नामांकित हुए थे। प्रोफेसर सिन्हा जी ने अपने कार्यकाल के दौरान संपूर्ण देश को अपने प्रभावशाली भाषण, प्रश्नों तथा तथ्य जनित ज्ञान से प्रभावित किए हैं। आप देश के सक्रिय सांसदों में से एक रहे हैं। आप प्रखर वक्ता और ज्ञान के गहन अध्ययन और समझ पर आधारित व्यक्तित्व के धनी हैं। आप तथ्यों और आंकड़ों से भी परिपूर्ण हैं। प्रोफेसर सिन्हा जी ने इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन में मानक निर्देशक के पद पर सुशोभित करने के साथ भारतीय संसद के विभिन्न समितियों जैसे कि वाणिज्य समिति, ग्रंथालय समिति, गृह मामलों की समिति, ज्वाइंट कमिटी ऑन डाटा प्रोडक्शन बिल 2019, विशेषाधिकार समिति, शिक्षा मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि के सदस्य रहे हैं। राज्यसभा के नामांकित सदस्य के रूप में प्रोफेसर सिन्हा जी ने मेघालय के 4 गांवों को अपनाए, जिसमें से कोंगथोंग गांव
भारत के पर्यटकों में की पसंदीदा जगहों में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में 2 बार इस गांव का वर्णन किया है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी 15 से अधिक पुस्तकों का लेखन किए हैं जो भारत की कई विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी की जीवनी, विचारों का स्वराज, संघ और राजनीति, सेकुलर इंडिया, पॉलिटिकल ऑफ माइनॉरिटी इत्यादि शामिल है, जो भारत की 10 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित हुई है। वर्ष 2000 में इन्हें पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा नचिकेता ट्रस्ट की ओर से बिपिन चंद्र पाल अवार्ड तथा सामाजिक विज्ञान में असाधारण योगदान हेतु भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा वर्ष 2017 में दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड से सम्मानित किए गए। प्रोफेसर सिन्हा ने अपने अति विशिष्ट शैक्षिक जीवन में कई पुरस्कार हासिल किए हैं, जिसमें 10वीं कक्षा में बिहार राज्य में 6ठा स्थान प्राप्त करने में स्वर्ण पदक, दिल्ली विश्वविद्यालय में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में 2रा स्थान तथा दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में पारा स्नातक के दौरान संपूर्ण कोर्स में उत्तीर्ण होने के साथ गोल्ड मेडल प्राप्त किए। वर्तमान समय में प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी दिल्ली विश्वविद्यालय के मोतीलाल नेहरू कॉलेज संज्ञा में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है, जो भावी पीढ़ी के निर्माण और देश के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। स्वागत है सर, थैंक यू। डॉक्टर आदित्य जी, संध्या राय जी, प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी, तो किसी कारणवश जेएनयू जाना पड़ा और आप खुशकिस्मत हैं कि आपको एक ऐसे प्राचार्य मिले जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं जीवंत रूप से प्रिय छात्रों और छात्राओं। ऐसे तो मैं इस विश्वविद्यालय परिवार का अंग हूँ, इसलिए आपके साथ संवाद ही अच्छा रहता, लेकिन चूंकि कार्यक्रम है तो मुझे बोलना है। मैं बहुत ही संकोच कर रहा था, संध्या जी को कई बार आना पड़ा, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में उद्देश्य नहीं होता है। The purpose of man in himself is not the objective. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मेघालय की बात हुई, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मेघालय की 2019 की घटना को 1984 से मैं जोड़ता हूँ। जब मैं राज्यसभा में आया तो मेरे सामने कई प्रश्न थे। वह प्रश्न था कि मिल रही सुविधाओं के अंतर्गत जीना या सुविधाओं को छोड़कर भारत के चित्र को अपने मानस में, अपने हृदय पे अंकित करना। मुझे पता चला कि एक गांव है भारत में, वो मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में है। मेघालय के 3 हिस्से हैं, गारो हिल्स, जैंतिया हिल्स और ईस्ट खासी हिल्स। इस गांव का नाम कॉम्थोंग है और इस गांव के ही जैसा एक गांव टर्की में है जिसका नाम कॉस्को है। दोनों की एक खास विशेषता है। हर मां अपने बच्चे के जन्म से पूर्व, उसके पृथ्वी पर आने से पूर्व, जब बच्चा मां की गर्भ में पलता रहता है, तभी उसके लिए एक ट्यून तैयार करती है। जैसे मैं एक ट्यून का उपयोग करता हूं, अब ये ट्यून मां एक बच्चे के तैयार करती है और हर एक बच्चे का जैसे नाम होता है वैसे उसका एक ट्यून होता है। उस गांव में लोग एक दूसरे को उस ट्यून से ही बुलाते हैं। हर व्यक्ति का जब उस ट्यून का उपयोग होता है तो गांव वालों को मालूम होता है कौन बुला रहा है, किसको बुला रहा है। हिंदुस्तान के एक कोने में ऐसा गांव, इसको मैंने राज्यसभा में उठाया कि इसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में शामिल किया जाए।
और मैंने कॉस्को का जिक्र किया। संयोग देखिए, दोनों गांव का नाम के से शुरू होता है, दोनों की आबादी 700 है, दोनों ही अपने देश में सीमांत हिस्से में स्थित है। जब मैं राज्यसभा में उठाया तो मेरा पहला टर्म था, इसके पहले ना मैं किसी संसद या विधानसभा में नहीं था, और ये 18 के मैं राज्यसभा में जाते ही मैंने इस प्रश्न को उठाया तो मैं थोड़ा हिचक रहा था। मुझे लगा कि सदन में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहेंगे ये कौन सा व्यक्ति आ गया एक छोटे से गांव की बात को राज्यसभा में उठा रहा है। इसलिए मैं बड़ा हिचकते हुए बोल रहा था, लेकिन परिणाम कुछ और हुआ। उस समय के राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू जी ने मुझे शाबाशी दी और पूरा सदन मेरे साथ खड़ा हो गया। अब ये घटना कहा जाती है, पानी में जब आप पत्थर मारते हैं तो आप उसके ऊपर की प्रतिक्रिया देखते हैं, उसके नीचे भी प्रतिक्रिया होती है। उस गांव के 2-3 पढ़े हुए लोग शिलांग आए और मेरा नंबर लेकर मुझसे मिलना चाहते। क्योंकि मेरे प्रश्न पूछने के बाद अखबारों में छपा, कलकत्ता के अखबार, शिलांग के अखबार। दुर्भाग्य यह था कि मेघालय के लोगों को भी इस गांव के बारे में जानकारी नहीं। वहाँ एक नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहाँ के वाइस चांसलर से, शिक्षकों से मैंने पूछा, किसी को जानकारी नहीं थी। तो फिर मैं उस गांव में गया। 2-3 बार जाने के बाद उस गांव के लोगों से मेरा रिश्ता बना, उस गांव को मैंने गोद लिया। भारत का चित्र कैसा है तब मैं देखा, जब हम महानगरों में रहकर भारत को पुस्तकों से जानने की कोशिश करते हैं तो हम भारत को नहीं समझ पाते, न इसकी संस्कृति समझ पाते हैं, न इसकी गरीबी समझ पाते। दोनों को समझना जरूरी है। हम संस्कृति में बहुत आगे हैं और भौतिक विकास में बहुत पीछे हैं। जब गांव का विकास होने लगा, वहां देश दुनिया के टूरिस्ट आने लगे, मैंने उस गांव को गोद लिया। मैंने एक कसम खाई थी, उस गांव में मैं सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं करूंगा। बिना सरकार का पैसा खर्च किए उस गांव को मैं भारत के शीर्ष पे ले जाऊंगा, और शिलांग के लोगों के सहयोग से जो दूसरा मैंने काम किया, बाकी काम तो आर्थिक विकास के हुए। यू टिरोत सिंह, जिसका नाम शायद आप सुने या नहीं सुने, जिस तरह से हम भगत सिंह जी का नाम सुनते हैं, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते हैं, इतने स्वतंत्रता सेनानियों का नाम सुनते हैं, वैसे ही यू टिरोत सिंह थे। भारत के इतिहास में भारत के सीमांत राज्यों की संस्कृति और वहां के संघर्ष को उचित स्थान नहीं दिया। हम भाषणों में नॉर्थ ईस्ट को की सराहना करते हैं, लेकिन व्यवहार में हम नॉर्थ ईस्ट को उपेक्षा करते हैं। नहीं तो यू टिरोत सिंह भारत के इतिहास की पुस्तक में एक पंक्ति में सिमट नहीं जाते, उन पर एक पृष्ठ होता। फिर यू टिरोत सिंह के नाम पर मैंने कॉम्पाउंड में गेट बनाया, जो बहुत ही अच्छा गेट है। शायद हिंदुस्तान के किसी गांव में इतना सुंदर गेट नहीं होगा। वह 15 लाख रुपये स्थानीय लोगों के सहयोग से गेट बना। जब कॉम्पाउंड का विकास होने लगा, और सबसे समस्या तब आई जब लोग लोकसभा में आ जाते हैं, संसद में आ जाते हैं, और हमारी भावनाओं से खेलते हुए 5 साल बिता देते हैं। जब अगली बार परीक्षा की नौबत आती है, जो चुनाव होता है, तब भी भावनाओं का एक नया ज्वार आता है, और हम जाति, धर्म, संप्रदाय में बढ़कर फिर वही गलती करते हैं, जिस गलती को करने के बाद हम पछताते हैं, लेकिन हम गलतियां रिपीट करते हैं। उस गांव में मेघालय का कोई भी जनप्रतिनिधि तो छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो छोड़ दीजिए, एक सामान्य कर्मचारी भी नहीं पहुंचा था। फिर मैंने एक बीरा उठाया। जब गांव के इर्द गिर्द के 12 गांव के लोग मेरे पास आने लगे, तो मैं मोमांग एक गांव है, उस गांव को मैंने गोद लिया। जब मैंने घोषणा की कि मैं मोमांग जाऊंगा, तो मुझे सरकार के लोगों ने रोका।
कि आप नहीं जा सकते, जाने का कोई रास्ता नहीं है। सवारी तो दूर, पैदल जाना भी मुश्किल है। पहाड़ी से जाना है, 1 घंटे का रास्ता है, और कहीं पर तो एक ही पैर रखने की जरूरत पर रख सकते हैं, दूसरे पैर रखने की जगह नहीं है, और नीचे 800 फीट की खाई। मैंने कहा मैं जाऊंगा, अगर गिरने से मौत होती है लेकिन भारत का दर्शन करना है तो मैं जाऊंगा। और मैं मान गया। मुझे 45 मिनट लगे बिना रुके जाने। उस गांव में तो सिर्फ पशु पक्षी ही आए थे, बाहर से कोई आदमी नहीं आया। पहली बार गांव के लोग बैठे, वे खासी बोलते हैं। कुछ मैंने खासी सीखा है। ये खासी छोटी सी भाषा है जो बहुत कम लोग बोलते हैं। जैसे खोले शुभ, आप कहते हैं स्वागत, थैंक यू, तो उसके लिए वो कहते हैं खोले शुभ। गांव को स्नॉक बोलते हैं। इस तरह से मैं कुछ भाषा सीखी, तो मैं उसे इंटरेक्ट करने की स्थिति में आ गया। मैं उसको इसलिए जोड़ा कि आप बच्चों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं। अब मैं कॉम्पाउंड से हिंदू कॉलेज आता हूं। मैं बिहार से अच्छी परीक्षा परिणाम गोल्ड मेडल के साथ मेरा हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ। बिहार का एक स्कूल है नेत्रहाट स्कूल, जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। बिहार बोर्ड में मेरा स्थान था। हिंदू कॉलेज में एडमिशन हुआ। हमारी बहुत अच्छी शिक्षिका थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी। विचारों से मेरा तब भी अंतर था, अभी अंतर है। सत्या राय जी, पहले क्लास में उन्होंने पूछा, स्वाभाविक है मार्क्सवादी थी तो मार्क्सवादी क्वेश्चन पूछती, व्हाट इज मार्क्सिज्म? मैंने हाथ उठाया, दूसरा कोई हाथ उठा नहीं। मैं 15 मिनट तक बोलता रहा। बोलने के बाद मुझे लगा मुझे शाबाशी मिलेगी, लेकिन सत्या राय जी ने जो कहा सो मैं बताता हूँ। एज इट इज मैं अंडरकोट, इन व्हिच लैंग्वेज यू स्पोक आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। मेरी अंग्रेजी ऐसी थी, उनको पता ही चला कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ कि भोजपुरी बोल रहा हूँ कि हिंदी बोल रहा हूँ। मैं प्रत्येक क्लास में कक्षा की शुरुआत अपनी इस घटना से करता हूँ। तब तो मुझे अपमान नहीं लगा, मुझे लगा जो स्थिति है, बच्चे हंस रहे थे। बाद की परिस्थिति मैंने बदली अपने रिजल्ट से, लेकिन जो बात मुझे 2016 में पता चला कि मैंने जो किया, अफ्रीका में नगवी वांगथोंग एक लेखक थे। बच्चों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भविष्य आपके हाथों में है। भाषा किस प्रकार से रोकती है प्रतिभा को, और प्रतिभा कैसे भाषा से जूझती है। बहुत बड़े लेखक थे। उनका पेटर्स ऑफ द ब्लड एक पुस्तक आई 1977 में, जो यूरोप में सबसे अधिक बिकी। अचानक 1977 में निर्णय लिया कि वो अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे और स्थानीय गोवी भाषा में लिखेंगे। उन्होंने जो बताया उसको आप ध्यान से सुनिए। यह बात उनके मस्तिष्क में क्यों आई? उन्होंने कहा, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मिशनरी स्कूल था, चूंकि अंग्रेजों का आधिपत्य था, तो उस मिशनरी स्कूल में हमें अंग्रेजी बोलने के लिए बाध्य किया जाता था। अब देखिए, मातृभाषा और बाहर से थोपी गई भाषा में क्या है? कोई भाषा बुरी नहीं होती, ना फ्रेंच बुरा है, ना अंग्रेजी बुरी है, ना जर्मन बुरा है, ना हिंदी, ना संस्कृत। सभी भाषा का अपना एक महत्व है, लेकिन भाषा का संबंध व्यक्ति के संस्कार से, व्यक्ति के इतिहास और विरासत से। उन्होंने कहा, जब हम घर में दादी माँ की कहानियां सुनते थे तो हर कहानी का अंत एक मॉरल मैसेज से होता था। जब हम खेलते थे अपने साथियों के साथ, हर खेल का अंत क्या होता था? सत्य की विजय। हर खेल का अंत क्या होता है? कि अंत में कोऑपरेट करो। हर खेल का अंत क्या होता है? दुष्टों का अंत करो। यही दादी माँ की कहानी थी, यही हम बच्चों के साथ खेलते थे। स्कूल में जब हम अंग्रेजी बोलते थे कक्षा में, लेकिन जब बाहर निकलते थे तो हम अपनी भाषा में बात करते थे। खासी जैसे भाग हुआ, खासी में बात करेगा।
कोई नागा होगा नागा में अपनी भाषा में बात करेगा, कोई हिंदी वाला होगा हिंदी, उसी तरह वो कोई में बात करते थे। तो टीचर्स को लगा कि इनकी भाषा को कैसे बदला जाए। बच्चे तो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी पढ़ते, लेकिन अंग्रेजी में नहीं हो पाते हैं, अंग्रेजी उनके जीवन को में मानसिक परिवर्तन नहीं कर पाते। अंग्रेजी तो अच्छी थी उनकी। तो शिक्षकों ने एक योजना बनाई स्कूल प्रशासन में कि जो बच्चा अंग्रेजी बोलता हो, गुगुई बोलता हो पकड़ा जाएगा, उसके गर्दन में एक मेटल प्लेट लगेगा जिसमें लिखा होगा आई एम ए डंकी। डंकी का अर्थ आप सब समझते हैं। और जो बच्चा इस बात की खबर करेगा कि वह बच्चा गुगुई बोल रहा है, उसको बिना परीक्षा दिए प्रोन्नति दे दी जाएगी। अब जो बच्चे दोस्त थे वो बच्चे टूट गए। कुछ बच्चों को लगता था कि मैं यदि इसकी खबर कर दी तो मेरा प्रोन्नति हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमारी गुगुई भाषा में जो दादी माँ कहानी सुनाती थी, हम खेलते थे, उसमें कॉपरेशन और अच्छाई की बात थी, और यहाँ पर हमें एक दूसरे से चीटिंग करना, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे का षड्यंत्र करना सिखाया जाता है। और यह बात कहा मेरे मस्तिष्क में स्कूल के समय से थी, इसलिए मैं अपनी ही भाषा में लिखूं। उसी नगुई ने डिकोलोनाइजिंग माइंड लिखा है, जो पुस्तक आज सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। पहला व्यक्ति है जिसने पूरी दुनिया को संदेश दिया कि औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल लेगेसी आपको इमिटेटर्स बनाता है, आपको नकलची बनाता है, उससे बाहर है। तो जो मेरे साथ 84 में घटना घटी, 2016 में मैंने एक पुस्तक लिखी स्वराज इन आइडिया। यह टाइटल मैंने किसी से बोरो किया। 1931 में आशुतोष मेमोरियल लेक्चर डॉक्टर कृष्ण भट्टाचार्य ने दिया था। केसी भट्टाचार्य एक बहुत विद्वान प्रोफेसर थे। उस तरह का विद्वतापूर्ण भाषण आज क्यों नहीं हमें सुनने को मिलता है, यह भी हमारे लिए एक आत्मालोचन का विषय है। पुस्तकालय में पुस्तकें बहुत आ गई हैं, पत्रिकाओं की संख्या बढ़ रही है, हर पत्रिका में 10-12 लेख होते हैं, लेकिन कोई पुस्तक, कोई लेख, कोई व्यक्तित्व तो हमारे मानस को परिवर्तन प्रेरणा देने की स्थिति में क्यों नहीं है। कोई गांधी, जेपी, आज जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है, कोई विनोबा भावे क्यों नहीं पैदा दे रहा है, कोई कृष्ण भट्टाचार्य झकझोरने वाला ज्ञान क्यों नहीं दे रहा है। जो कृष्ण भट्टाचार्य ने 1931 में दिया, वही चाथम लेक्चर महात्मा गांधी ने 1931 में लंदन में दिया। दोनों का भाषा का श्रेय एक ही था। उन्होंने कहा जब राजनीतिक गुलामी होती है दिखाई पड़ता है, सांस्कृतिक गुलामी दिखाई नहीं पड़ती। धीरे धीरे अपना आता है। पहले आप विरोध करते हैं, फिर उसको किसी तरह स्वीकार करते हैं बेमन से, और अंत में आप उसको अपना जीवन मूल्य बनाकर उसकी प्रशंसा करते हैं। एक संदेश जो मुझे अपने जीवन में नगुई को पढ़कर, केसी भट्टाचार्य को पढ़कर लगा कि हमें अपने बुनियाद को, अपने मौलिकता को बदलना नहीं चाहिए। मौलिक व्यक्ति जैसे फॉरेस्ट होता है, जंगल और पार्क में, गार्डन में क्या अंतर है? गार्डन में आपके मन मस्तिष्क के अनुसार पेड़ पौधा होता है, कहाँ कौन पेड़ होगा, किसका साइज क्या होगा, किस रंग का पौधा होगा। जंगल में स्वाभाविक ग्रोथ। तो सेकुलरिज्म जो है, पंथ निरपेक्षता, वही जंगल है, वो गार्डन नहीं। काट छाट कर देश में आप पंथ निरपेक्षता नहीं बना सकते हैं। वो स्वाभाविक रूप से जो विकास हो रहा है, वह धर्म का, संस्कृति का, सभ्यता का स्वाभाविक विकास का अवसर मिलना चाहिए। यही भारत की पंथ निरपेक्षता की परिभाषा है, ये भारत की मौलिकता की परिभाषा है। इसी परिभाषा को यदि हम आत्मसात कर लेंगे तो अनेक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो 84 की घटना ने मुझे झुकने नहीं दिया। मैं अंततः दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस में जो मैं चाहता था वो करके आ गया, यानी मैं स्वर्ण पदक ले लिया। आप सबको मैं कहता हूं कि भाषा, नॉलेज ट्रांसेंड्स द लिमिट ऑफ लैंग्वेज। आपका ज्ञान भाषा के द्वारा उत्पन्न सीमाओं को लांघ जाता है। मैं अब कॉकथॉम जाता हूं, आप जाएं, मैंने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे पहली बार गए थे कुछ महीने पहले,
तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि मुझे लोग इस तरह से आत्मसात करते। पहले देखा, फिर छोटे छोटे बच्चों से मेरा नाम पूछना शुरू किया। सभी बच्चे मुझे इस तरह से स्वीकार करते जैसे मैं उनका पापा हूँ, मैं उनका चाचा हूँ, मैं उनका मामा हूँ। तो यह एक संतुष्टि मुझे दिया। लेकिन एक और समस्या जो है, जो राज्यसभा में मैंने उठाया, क्योंकि राज्यसभा का 6 साल का समय किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत लंबा समय होता है, छोटा समय नहीं होता। मेरा पहला ही लगभग भाषण था। इस देश में आपको मालूम है 11-12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास पोस्टल एड्रेस नहीं है। यदि उससे पूछेंगे कि आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, आपका गांव कौन सा है, तो नहीं पता। और ये देश विकास की परचम लेकर दुनिया में घूम रहा है। जिस देश में 12 करोड़ लोगों का पोस्टल एड्रेस नहीं हो, इसको नोमैडिक ट्राइब कहते हैं, घुमंतु जाति। ये घुमंतु जाति के लोग हुए हैं जो सोलापुर में लगभग 100 एकड़ जगह में एक करीब 40 फीट 50 फीट हाइट की उनको तार के घेरे से घेर दिया गया था। वहीं वे रहते थे। उनको क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था। जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में एक हथौड़ा मार के उसको तोड़ा। अच्छा किया, उनको क्रिमिनल ट्राइब के टैग से मुक्त किया। लेकिन आज तक उनके बारे में सदर में किसी ने नहीं बोला। मुझे नहीं लगा कि मैं पहली बार बोला। जब मैं बोला तो घटना ये घटी कि सोलापुर के 40-50 लोग मेरे पास आए ट्रेन से। वो कहे मैं आना चाहता हूँ। मैं कहा दिल्ली आ रहा हूँ। आए और 50 लोगों के पास तो मेरे पास जगह नहीं थी, सबको मेरे पास पहुंच गए। तो मुझे लगा कि मुझे घुमंतु जाति के साथ जुड़ना चाहिए, उनके अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। इस तरह की कुछ बातें होती हैं जिससे मैंने कहा मैन इज नॉट पर्पस इन हिमसेल्फ। हम स्वयं में उद्देश्य नहीं है। जब हम उद्देश्य होते हैं तो हर जगह अपने कैरियर को ढूंढते हैं। जब समाज उद्देश्य होता है तो हम कैरियर को छोड़ते जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि थी, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने का निमंत्रण मिला, कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का निमंत्रण मिला। लोहिया जी के साथ सोशलिस्ट पार्टी में बड़े नेता थे, लेकिन उनको छोड़ दिया। आप सबको मैं एक आग्रह करता हूँ, यहाँ के शिक्षकों को विशेष करके, कि पवनार जाइए। ये पवनार महाराष्ट्र के वर्धा में, नागपुर से 1.5 घंटे का रास्ता है। मैं तीसरी बार वहां भी गया और इस बार मैं लगभग दिन भर रहा। विनोबा भावे का आपने नाम सुना होगा, और जनरल नॉलेज तक वो सिमट गए। भूदान जग का एक प्रश्न आता है, कभी यूपीएससी में, कभी बाकी परीक्षा में, उतना ही हम जानते हैं। उस व्यक्ति ने 44 लाख हेक्टेयर जमीन लोगों से दान दी। उस व्यक्तित्व को देखिए, महाराष्ट्र में जन्म लिया हुआ व्यक्ति बिहार उत्तर प्रदेश के किसानों से जमीन दान लेने के सामर्थ्य रखता है। 50-60 की घटना, 44 लाख हेक्टेयर जमीन लेकर गरीबों में बटा। तो मैं उस आश्रम में गया तो पिछली बार गया तो 32 लोग थे। जो सबसे कम आयु का व्यक्ति उसमें है, आप अनुमान लगाइए सबसे कम आयु का व्यक्ति कितने साल होगा। उस वक्त वो 84 साल के थे। और जो सबसे अधिक आयु के व्यक्ति 32 लोग में थे, उनका उम्र तब 98 ईयर्स थी। अब जब मैं गया तो उम्र बढ़ी, तो मैंने पूछा कि 32 लोग एक साथ मिलना चाहते हैं। तो बोले 7 लोग चले गए और अगली बार आएंगे तो 10 लोग और चले जाएंगे। तो 90 से ऊपर हम 10 लोग, 30-25 में 23 महिलाएं हैं, जिसमें कर्नाटक की हैं, कुछ एक विदेश की हैं, विभिन्न राज्यों की हैं, 2 पुरुष हैं। उसमें गौतम बजाज हैं, जो राहुल बजाज, जो जिनकी स्कूटर की बड़ी फेमस कंपनी रही है, उनके चाचा हैं। आप देखिए हिंदुस्तान में कैसे लोग हैं कि 91 साल की महिला स्वयं 120 रोटियां बनाती हैं लोगों के लिए आश्रम में। स्वावलंबन का क्या स्वरूप है, उस विचार को लेकर उन्हें बड़ी एक आशावादिता है कि हिंदुस्तान में विचारों से ही हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपको जब भी मौका मिले उस पवनार आश्रम जाकर देखिए किस प्रकार से पुण्य का सृजन लोग आज भी एक कोने में बैठकर करें। घटना ये घटी
जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आया और पढ़ाई किया, शिक्षा की हालत पर मैं थोड़ी प्रकाश डालूंगा। मुझे लगभग 40 साक्षात्कार देने के बाद अस्थायी शिक्षक का जॉब मिला। मेरे पिताजी कहा करते थे जो टॉपर होता था उसे वाइस चांसलर निमंत्रित करते थे, लेकिन मुझे 40 साक्षात्कार देना पड़ा। तो संघर्ष व्यक्ति को यदि झुका देता है, संघर्ष से व्यक्ति यदि समझौता कर लेता है, तो उसके रचनात्मकता का रास्ता बंद हो जाता है। संघर्ष उसी को करना पड़ता है जो मन में संकल्प लेता है कि मुझे जीवन में रचनात्मक कामों से जुड़ना है। देखिए, मार्टिन लूथर सिर्फ 34 ईयर्स के थे जब 95 थीसिस करके उन्होंने ईसाई धर्म में जो कुपरंपराएं थी उसको चुनौती दी। तो एक डिबेट हुआ मार्टिन लूथर और एक ECK, दोनों के बीच डिबेट हुआ। लिप्जिग डिबेट कहते हैं। यह 1600 शताब्दी की घटना है, आज से 600 साल पहले। वो इतना अच्छा डिबेट, 23 डेज 23 दिनों तक डिबेट चला। हम कहते हैं विकसित हो गए। आज आप एक घटना का जिक्र कीजिए जिसमें 23 दिनों तक डिबेट चल रहा हो, 23 घंटे भी नहीं चल। हम सोशल मीडिया पर अपनी एक छोटी सी प्रतिक्रिया देकर लगता है हमारा काम पूरा हो गया, पढ़कर लिखकर। और वह डिबेट था और 1869 में काशी में शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती या बच्चा झा में कई दिनों तक 7 दिनों तक डिबेट चलता रहा। तो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे कपड़े बदल गए, हमारे घर के रूप स्वरूप बदल गए, सुंदर घर मिल रहे हैं, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अच्छे कॉस्मेटिक्स मिल रहे हैं। हम सड़कों पे बाल कटाने की जगह अच्छी जगह जाकर बाल कटाते हैं। सड़क अच्छी हो गई, परिवहन अच्छा हो गया, घर वातानुकूलित हो गया। क्या मन की सड़क, मन का सड़क, मन का वातानुकूलित होना हुआ? नहीं हुआ। भौतिक विकास जिस गति से हो रही है उसके 10वें हिस्से से भी मानसिक उन्नति नहीं। इससे विकास के बाद भी हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति कोलाहल में जी रहा है, संतुष्टि को ढूंढ रहा है। इसलिए जब हम पीछे की विरासत को देखते हैं तो व्यक्ति एक मिरर की तरह होता है, वैसा बनना नहीं होता है, उसको उसके रास्ते पर चलना नहीं होता है, उस मिरर में अपने आप को देखना होता है। हम मिरर नहीं बनते हैं, आईना के सामने जाकर हम नहीं कहते कि आईना की तरह चमकने वाला एक शीशा बन जाए। आईना में हम देखते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। तो जब हम जेपी को, विनोबा का मैंने चर्चा किया, नागरी की चर्चा किया, मार्टिन लूथर की चर्चा किया, महात्मा गांधी की चर्चा किया, केसी भट्टाचार्य की चर्चा किया, तो हमें से वैसा ही नहीं बनना है। उनको ऐनक बना के हम देखें हम कहाँ हैं। और हम इस आयु में, किसी की आयु 30 साल है, किसी की आयु 18 साल है, किसी की आयु 50 साल है, किसी 60 साल है, हमने ऐसा क्या किया कि आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी। जीवन का एक छोटा सा अंश, छोटा सा हिस्सा, समय का, ऊर्जा का, मन का, धन का निवेश करना चाहिए। जैसे हम कुछ हिस्सा फिक्स डिपॉजिट करते हैं, कुछ हिस्सा हम लाइफ इंश्योरेंस में लगाते हैं, कुछ हिस्सा प्रतिदिन खर्च करते हैं, तो जीवन के का कुछ अंश अपनी ऊर्जा का, अपने मन का, अपने संकल्प का भविष्य की पीढ़ी के लिए लगाना चाहिए। वो निवेश होता है, वो समाज में लगाया गया निवेश होता है। यह जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम नया मानव, न्यू मैन क्रिएट नहीं कर सकते। आज सबसे बड़ी चुनौती है
नव मानव को पैदा करें। आप देखिए भारत की स्थिति, स्कूल कॉलेज की संख्या बढ़ गई, साक्षरता बढ़ गई, लेकिन जातीय संघर्ष, भाषाई संघर्ष, सांप्रदायिक संघर्ष भी उससे अधिक गति से बढ़ रहा है। हम लोगों की पहचान अब उसकी जाति और धर्म से करने लगे। यह भारत की इतनी बड़ी विडंबना है कि किसी व्यक्ति को मिलते ही हमारे मन में उसकी जाति सूचक और संप्रदाय सूचक या धर्म सूचक बात ध्यान में आती है, या जानने की कोशिश करते हैं। भारत को इससे बाहर निकालना हम सबकी चुनौती है। यही काम करना गांधी बनना होगा, यही काम करना जेपी बनना होगा, यही काम करना भगत सिंह बनना होगा। आज का संघर्ष देखिए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात किसी के जीवन संघर्ष में होता है, जैसे आपको मैं आईना दिखा हूं, मैं भी आईना रोज देखता हूं। 3 छोटी छोटी कहानियां बता रहा हूं जो आपके मस्तिष्क को झकझोर देगा। इसकी चर्चा मैंने राज्यसभा में भी अपने भाषणों में की। बाल गंगाधर तिलक का आप लाल बाल 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। साधारणतः हम जानते हैं कि वे केसरी के संपादक थे, स्वतंत्रता आंदोलन को जेल मिली, मांडले जेल में थी, सब बातें हम जानते हैं। लेकिन महान व्यक्ति की जो चमक होती है, लगता है लोकमान्य तिलक बने, आसान नहीं। एक घटना सुनिए। लोकमान्य तिलक के सबसे बड़े बेटे का नाम विश्वनाथ। 1903 में प्लेग था, विश्वनाथ को प्लेग हो गया था। घर के बाहर ही थोड़ी दूर पर एक कुटिया बना को रखा जाता है। एक दिन ऐसी घटना घटी, मंगलवार का दिन था और बाल गंगाधर तिलक अपने ही अखबार केसरी के लिए एक लेख लिखा रहे थे। वो लेख यह था कि भारतीय राज्य यानी भारत के 16 राज्य और अंग्रेजों के बीच एक समझौता हुआ था, जो समझौता हमारे विरुद्ध था। रात में उन्होंने तैयारी की समझौते को पढ़कर, दिन में अगर लेख लिखा थे। एक कुलकर्णी नाम का व्यक्ति डिक्टेशन ले रहा, अंदर से रोने की आवाज आई और छोटे बेटे ने कहा, हम दादा को बताते हैं कि विश्वनाथ नहीं रहा। तिलक जी की धर्म पत्नियों को उसको रोकती है, दादा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, अभी उनको मत। कुलकर्णी जी ने लिखा अपने संस्मरण में कि मेरे कानों में वो रोने की आवाज और उनके छोटे बेटे का वो शब्द आया कि विश्वनाथ नहीं की मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा लगा तिलक बहरे हो गए, उसी धुन से लिखाए जा रहे थे। कुलकर्णी ने कहा, जिस बच्चे को मैंने गोद में खिलाया, मेरा हाथ कांप रहा था लिखते वक्त, मैं लिख नहीं पा रहा। लेकिन तिलक के चेहरे पर, तिलक के शब्दों में, तिलक के चिंतन में कोई असर नहीं। अगर लेख पूरा होता है, उसमें कंप्यूटर नहीं था, उसका किस तरह से टक्कर होता था, उसका प्रूफ देखने के बाद जब अंतिम प्रूफ देख लिया तिलक जी ने, तब अपने बेटे के पार्थिव शरीर के पास गए। पुत्र शोक को भी राष्ट्र के लिए उन्हें 2 घंटे तक रोक लिया। एक दूसरी घटना बताता हूं। कोई महान व्यक्ति जब आगे बढ़ता है, जब तो उस मिरर में हम देखते रहता हम कहीं नहीं, उनके किसी एक अंश भी नहीं, एक राय के समान भी नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर को हम सब जानते हैं, गुरुदेव को। भारत के ऐसे लेखक हैं जिनके लिटरेचर को वर्ल्ड लिटरेचर यानी विश्व साहित्य कहा जाता है। गीतांजलि पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी मां की मृत्यु, फिर पिता की मृत्यु, फिर बेटी की मृत्यु जिसे बहुत प्यार करती थी, फिर पुत्र की मृत्यु, और जो भाभी मां उनको सबसे अधिक सहारा देती थी, जिसके कारण टैगोर थे, उनकी लगभग आधे दर्जन मृत्यु को झेलने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य के साथ न संबंध तोड़ा, न उत्साह तोड़ा,
उन्होंने कहा मृत्यु को मैंने आत्मसात कर लिया था। कोई मृत्यु घर में आता था, लगता ये तो हमारा स्थायी मेहमान है, मुझे तो आने वाली पीढ़ी के लिए जीना है, उनको कुछ देकर जाना है। इस तरह की घटनाओं से जीने वाले लोग लगातार संघर्ष करते हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन, प्रकृति की आपदा, आर्थिक और सामाजिक परेशानियां, इसको उत्तीर्ण करने के बाद ही व्यक्ति समाज के लिए ठोस रूप में कुछ दे पाने में सक्षम होता है। इन घटनाओं को देखकर हमें थोड़ी सी अपने आप को मजबूत करना और समाज को कुछ देने का संकल्प करना चाहिए। एक तीसरी बात जो मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि विचारों का प्रवाह भारत में कभी केंद्रीकृत नहीं रहा। भारत का स्वभाव विकेंद्रीकरण का है। इसलिए देखेंगे कि छोटी छोटी जगहों पर उत्सव होते हैं, हम बड़े भगवान को मानते हैं, छोटी जगह जाएंगे किसी ऐसे भगवान की मूर्ति होगी जिसका हमने नाम नहीं सुना, लोग उनके लिए बहुत श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते हैं, जिसको अंग्रेजी में डेमी गॉड कहा जाता है। तो भारत के स्वभाव में विकेंद्रीकरण है। उत्सव में, ईश्वर में, परंपराओं में, जीवन शैली में, खान पान में, कपड़ों में। इसलिए भारत में कपड़ों का एक जैसा होना, खान पान का एक जैसा होना, रहन सहन का एक बाजा होना जो कहते हैं, वो भारत को नहीं समझ पाते, वो भारतीयता की परिभाषा नहीं समझ पाते। इसकी विविधता, भिन्नता, इसमें टकराव भी होगा, टकराव को भी स्वीकार करना, यही भारतीयता है। हमेशा समन्वय ही नहीं रहता है। कभी कभी अच्छाई स्वयं प्रवृत्त होती है, कभी कभी अच्छाई, ट्रुथ कम्स आउट ऑफ मिस्टेक्स। कभी गलतियां होती हैं, उससे फिर ट्रुथ निकलता है, सत्य का। रावण की गलतियों से विभीषण आए और राम स्वयं में सत्य के आचरण करते हुए पैदा लिए। तो सत्य दोनों तरफ से आता है। इसे टकराव को भी स्वीकार करना चाहिए, समन्वय को भी स्वीकार करना चाहिए। ये भारत का जो चरय व्यक्ति है, इसी से बनता है टकराव, कन्फ्रंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जो मैं बात यहां कहना चाहता हूं, विचार का प्रवाह कैसे चलता है। जब मैं हिंदू कॉलेज में था या बाद में जब शिक्षक बना, तो मैंने एक जनसत्ता के लिए उसका जिक्र किया। एक जैसे का ढाबा होता था, उस ढाबे पर लोग बैठते थे, या दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी के पास एक ढाबे पे ईंट पे बैठते थे और कभी चाय पूरी नहीं पीते थे। चाय का जो ऑर्डर जाता था 2/3, 3/4, जितने लोग होते थे उससे कम चाय होती थी, उसको अधिक बांटते थे। ये क्या है? हम तो यूं ही बोलते थे, साझा संस्कृति में विश्वास। साझेदारी जो है हमारी विशेषता है। जैसे जैसे भौतिक विकास हुआ, हम सिमटते जा रहे हैं। आप गूगल में जाकर देखें कि नींद की गोली का मार्केट क्या है और 2030 इसका मार्केट कितना होगा। 2030 में नींद की गोली का मार्केट सभी दवाइयों से सबसे अधिक होगा, $1 ट्रिलियन में होगा। यानी भौतिक विकास की संभावनाओं से आशंकाएं ज्यादा हैं। इसलिए दवा की कंपनियों को लगता है कि इस गति से मानसिक विकृति आएगी। तो मैंने यही कहा कि हम लोग चाय पीते थे, अब बड़े बड़े स्टॉल खुल गए हैं, 500 की चाय पीने का बजट बढ़ गया है। तो भौतिक संस्थाओं का जो विश्वविद्यालय है, इसका माइग्रेंट वर्कर्स जो समस्या हमने कोविड में देखा, दूसरा नॉर्थ ईस्ट, और तीसरा जो मुझे लगा कि जो सबसे बड़ी समस्या है, वल्नरेबल ट्राइब्स। इस देश में ऐसे भी ट्राइब्स हैं जिसकी संख्या 10 से 10,000 रह गई। तो आपके मन में कौन सी बात आती है, कौन सी धारा बहती है। इसीलिए भारत में कहा जाता है स्वाध्याय और सत्संग। जैसे बुराइयां फैलती है, उससे अच्छाइयां फैलती हैं।
जब अच्छे साथ बैठेंगे। तो मैं आप सब बच्चों को खास करके कहता हूँ, छोटी छोटी चाय की दुकान पे बैठकर अनौपचारिक तरीके से विमर्श करना, बातों को करना, आप जो बोलते हैं उसमें औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। यही हिंदुस्तान को एक सुंदरता देगी। इसी अनौपचारिकता ने इस देश में महान लोगों को पैदा किया। औपचारिकता से कभी महान लोग पैदा नहीं होते हैं। तो आपका रास्ता वहीं जाता है जहाँ भारत का रास्ता जाता है। आप जो राह चलेंगे वही भारत का राह होगा, भारत का राह आपका राह नहीं होगा। इससे भारत का भविष्य जब कहा जाता है तो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, आप इसी अनुसार से लगातार करते रहे। मैं देशबंधु कॉलेज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि मुझे आपने अवसर दिया आपके साथ मिलने का। 90 के दशक में शायद मैं साक्षात्कार देने के लिए इस कॉलेज में आया था और नहीं हो पाया, नहीं तो मैं आपके साथ ही रहता। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विद्यार्थी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में और एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, एक राजनेता के रूप में आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। नव मानव के निर्माण में भी आपका अनुभव उनके जीवन पथ को गति और सहयोग प्रदान करेगा। इसी उम्मीद के साथ देशबंधु परिवार आपको आभार प्रकट करता है। नाउ आई ओपन द फ्लोर फॉर द Q&A session. If anybody have a question, you may ask. Video of